I will give you an overview of what we have discussed, or what I have discussed in the recorded lecture. You will find that lecture on YouTube. So this is continuation of the previous lecture. In previous lecture, I have discussed business communication. I have talked about business communication. What is business communication? So in business communication, we have a way of dealing with multiple issues, like that can be a kind of social communication, that can be a kind of communication that aims at conveying your message to your employer. So in which we write memos, in which we write meeting agendas, meeting minutes of meeting, you may say. We write resumes, we write covering letters. So these have been important in business communication, or these are important. So today we will talk about another important element of this business communication, and that is reference letters. In reference letters, we seek the reference of a professor, a colleague, an important person who knows us. Particularly when you are seeking admission in a university, in a foreign university, or you are applying for a scholarship, the scholars, those who are providing you scholarship, will demand a reference letter, 2 reference letters or 3 reference letters. So you need to know how to build or how to write this reference letter. इसमें होता क्या है कि मतलब यूजुअली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोफेसर, कि जो प्रोफेसर आपके लिए रेफरेंस लेटर लिखता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मतलब वो आपके लिए लेटर लिखे. सेकेंडली, अगर आपसे कोई राय पूछे आपके कलीग के बारे में, सपोज इफ़ यू आर इन अ पोजीशन, मतलब आपके पास कोई सरकारी पोजीशन है, यू आर अ प्रोफेसर, यू आर अ टीचर, लेक्चरर, सो आपका कोई दोस्त आपसे रेफरेंस लेटर मांगे तो हाउ विल यू राइट दैट रेफरेंस लेटर? उस रेफरेंस लेटर में आपने क्या लिखना होता? कुछ बच्चे वेटिंग में हैं, उनको प्लीज ज्वाइन कर ले, मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में. ओके बेटा. सो वो आप कोई रेफरेंस लेटर लिखते हैं, उसमें उस लेटर में होता क्या है कि यू टेल them about that person, means that friend of yours, कि मतलब that you know him, he is competent for the position, he has abilities to handle the situation, his behavior is overall suitable, मतलब उसका जो तरीकाकार है डील करने का किसी सिचुएशन को, मतलब that is apt. So, इस किस्म की बातें लिख के आप अपने दोस्त के बारे में, कलीग के बारे में लिख के आप दे सकते हैं, if you are in a position or on a position. Suppose यहाँ पे क्या है कि मतलब आपको इस किस्म का लेटर लिखना नहीं होता है because you are not on that position. So you need reference letters. आपको reference letters चाहिए इस लेवल पे कि मतलब कोई आपके लिए लिखे. तो मैंने क्या बताया कि मतलब आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है तो आपको कहा जाता है कि भाई 3 हैं लेटर्स वो चाहिए हमें, 3 रेफरेंस लेटर्स चाहिए. मींस 3 टीचर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, मतलब उनमें से कोई 3 हो सकते हैं और उनके डिमांड के मुताबिक हो सकता असिस्टेंट प्रोफेसर से भी काम चल जाए, या वो कहें कि एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर लेवल के हों. सो यू आर आस्क्ड टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड 2 or 3 reference letters in which those people, मतलब कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, will recommend you or recommend your nomination. He will say this person
means I know this person and he is eligible. I think he is eligible for this post or for this university. Means वो फ्यूचर में इस यूनिवर्सिटी में काम बेहतर अंदाज में कर सकता है. Means उसे एडमिशन मिल जाए तो he can excel his abilities. This is how we write the reference letters. Now अब हम इसी के बारे में मीन्स कोई एग्जांपल डिस्कस करेंगे. जब आप रेफरेंस लेटर लिखते हैं तो इसमें कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब द एलिमेंट्स, द स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ऑफ a letter of reference. The first thing that you need to include in your reference letter is explain who you are and why you are writing. Explain who you are and why you are writing. Suppose you are going to the department and you are asking for a reference letter, a letter. आप अपने टीचर से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कहते हैं कि सर मुझे रेफरेंस लेटर चाहिए, तो वो सर सबसे पहले क्या लिखे कि he will explain कि who he is and why he is writing. वो सबसे पहले वो रीज़न टीचर ने बतानी होती है. मीन जो रेफरेंस देता है, रेफरेंस लेटर जो देता है, वो ये चीज़ एक्सप्लेन करेगा. देन he will have to explain how you know the candidate and for how long. कि अगर आपके डिपार्टमेंट के हेड आपके लिए कोई रेफरेंस लेटर प्रोवाइड करते हैं तो वो ये भी उसमें मेंशन करेगा कि मतलब जो कैंडिडेट है उसके बारे में कब से वो नॉलेज रखते हैं. हाउ द कैंडिडेट एंड हाउ लॉन्ग, हाउ यू नो द कैंडिडेट, कि मतलब वो आपको कैसे जानते हैं. देन द थर्ड थिंग दैट is needed in the letter is to describe the candidate's strengths and weaknesses. Strength and weaknesses कि मतलब रेफरेंस वो लिख सकता है जो आपको जानता हो. मतलब यहाँ पे ट्रेंड क्या है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में कि मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में जाके लेटर मांगने लग जाते हैं कि भाई आई नीड रेफरेंस लेटर. मतलब एक स्टूडेंट होगा पंजाब यूनिवर्सिटी का एंड ही इज़ सीकिंग रेफरेंस लेटर फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मतलब जिसका ताल्लुक पंजाब यूनिवर्सिटी से है और टीचर का ताल्लुक जीसी यूनिवर्सिटी से है, तो हाउ विल ही नो कि मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ क्या है. मतलब रेफरेंस का क्या मतलब होता है कि मतलब यू नो द पर्सन, यू नो हिज एबिलिटीज, यू हैव नॉलेज अबाउट his experience and his capacities. That's why you refer or you recommend him for a kind of position, for a kind of university admission. So आपने डिस्क्राइब करना है कि मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ्स क्या है एंड वीकनेसेस क्या है. इट डजंट मीन कि मतलब आप मतलब उसकी बुराई करें. वीकनेसेस का मतलब देयर कैन बी वीकनेसेस, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. बट इन रेफरेंस लेटर होता ये है कि द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आर हाईलाइटेड, मींस द स्ट्रेंथ्स आर हाईलाइटेड. मतलब अगर वीकनेसेस है तो भी उनको किसी तरीके से हाइड करने की कोशिश करते हैं. मतलब एक दो आप बेशक पॉइंट आउट करें, लेकिन यू नीड टू फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स. देन the fourth thing that you need to mention in that letter is comment on the candidate's suitability for the job in question or for the admission. मतलब जैसा कि मैंने बताया कि या तो आप जॉब के लिए ये रिकमेंडेशन लेटर जो होता है या जो रेफरेंस लेटर होता है वो, या फिर एडमिशन के लिए. तो आपने कैंडिडेट्स की जो सूटेबिलिटी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हवाले से हो, मीन जॉब के हवाले से हो या किसी एडमिशन के हवाले से हो, कि आपने बताना है कि इस पोजीशन के लिए या इस एडमिशन के लिए इस सब्जेक्ट में ये बंदा सूटेबल है, उसके हवाले से आपने कमेंट करना है. और लास्ट में आपने समराइज करना है कि योर रिकमेंडेशन क्या, कि मतलब मैं समझता हूँ कि इस पोजीशन के लिए ये बंदा बेटर है. सो समराइज में मतलब आपने ओवरऑल समराइज करके बताना है कि क्या आप समझते हैं कि इस पोजीशन के लिए ये बंदा सूटेबल है और नॉट. दैट इज हाउ यू समराइज योर रेफरेंस लेटर. नाउ व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स
you will use. मतलब जो लेटर आप जिस बंदे के लिए लिख रहे हैं मीन्स एक बंदे के लिए लिखा जा रहा है. सपोज आप बीच में स्टूडेंट है, कैंडिडेट हैं, आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है आपके लिए लिख रहा है लेकिन वो किसी और को लिख रहा है. वो कौन होगा? वो मतलब सपोज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डीन को लिख रहे होंगे. डीन ने मांगा हो आपसे रेफरेंस लेटर की, मतलब अगर आपकी यूनिवर्सिटी वाले अगर लिखते हैं कि ये बंदा सूटेबल है तो हम आपको हायर करेंगे. सो आपके नाम पे वो लेटर नहीं बनेगा, नहीं लिखेगा, बल्कि जो आपके एचओडी हैं ही विल राइट that letter to the concerned person in other institution. That can be an educational institution, that can be a kind of private institution. So it depends कि वो किसने डिमांड किया है आपसे, किसने मांगा है रेफरेंस लेटर. सो उसके मुताबिक आपने फिर आगे किसी को एड्रेस करना होता है. अब इसमें जो वर्ड्स का चुनाव है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज इम्पॉर्टेंट. मतलब आपने जनरल बातें नहीं करनी है उस लेटर के अंदर. मीन्स जो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता ये है कि जब आप किसी टीचर के पास जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, आप कहते हैं कि सर मुझे लेटर चाहिए, रेफरेंस लेटर. तो वो कहते हैं आप कोई लिख के ले आए, मैं आपके लिए मतलब वो मैं आपको स्टैम्प करके देता हूँ, थोड़ी सी एडिटिंग करके, तो आप वही आगे भेजते हैं. सो दैट usually they don't have enough time to write a letter for you. Rather, you compose a letter on behalf of the head of the department, the teacher. Then they read it out. If they find it suitable, the words, the sentences, then what they do, they will sign it. मतलब अपना स्टैम्प और साइन के साथ. सो दिस इज हाउ दे राइट. सो आपने सीखना है कि मतलब कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है. जैसा कि मैंने स्टेप्स बताए, उसके अंदर एलिमेंट्स जो बताए वो आपने मुकम्मल तौर पर फॉलो करने हैं. और उसमें मैंने बताया कि मतलब आपने जर्नल नहीं होना है. मींस जिस बंदे के नाम आप लिख रहे हैं ना, उसमें जैसा कि कोई एहसान नाम का कोई बंदा हो सकता है डीन के तौर पे जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, या एचओडी किसी और डिपार्टमेंट का हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी में, या वीसी के नाम लिखना होता है, तो आप डियर मिस्टर एहसान इस तरह लिखेंगे इंस्टेड ऑफ सेइंग. देखें कुछ लेटर्स ऐसे भी हैं जिनका जो होता है ना कि जिसके लिए हम लिख रहे हैं एड्रेसी, उसका पता नहीं चलता है, तो एट दैट टाइम वी राइट टू whom it may concern. टू whom it may concern. कोई भी एप्लीकेशन आप लिख लें, कोई भी लेटर लिख लें, जिस बंदे को आप लिख रहे हैं उसका नाम का नहीं पता, उसकी पोजीशन का नहीं पता, तो एट दैट टाइम जस्ट यू राइट इन द सेंटर टू whom it may concern and you underline it. देन वो लेटर चला जाता है, कंसर्न बंदे को ही चला जाता है. लेकिन आपने ये नहीं लिखना है मींस रेफरेंस लेटर में टू whom it may concern. आप पहले ये ट्रेस करें कि मतलब किसको लिखना है, किसको चाहिए, क्योंकि लेटर में जिसने आपको कहा है कि भाई ये चीज़ें प्रोवाइड करें, मींस रेफरेंस लेटर चाहिए या प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, वो एंड पे अपना साइन करता है. तो इसका मतलब ये है कि जो साइन करने वाला है वही है एड्रेसी जिसको आपने लेटर मींस आपके एचओडी के ज़रिए से भिजवाना है. सो यू नीड टू नो द नेम and you need to address him with his name instead of saying to whom it may concern. अब इसके बाद डायरेक्टली जिस बंदे के लिए वो आपके एचओडी मींस सपोज आप कैंडिडेट हैं तो आपके लिए वो लिख रहे हैं, तो उन्होंने ये लिखना है, मींस उनको ये लिखना चाहिए, आई एम राइटिंग टू सपोर्ट मिस्टर Ahmad, suppose your name is Ahmad, for the position of director, for the position of lecturer, मतलब lecturer at agriculture university. मतलब ये ज़्यादा क्या है, मोर इफेक्टिव है. उसके बदले में अगर आप कहें आई नो मिस्टर Ahmad is the right person for the position for which he has applied. अब देखें यहाँ पे ऊपर जो मैंने लाइन पढ़ी उसमें क्या है कि यू आर पॉइंटिंग द पोजीशन फॉर विच यू आर गोइंग टू अप्लाई. इसमें क्या है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, आई एम राइटिंग टू सपोर्ट मिस्टर एहसान फॉर द पोजीशन ऑफ लेक्चरर एट
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। मतलब आगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेशक ना लिखे, पोजीशन का नाम लें, क्योंकि दैट इज़ अंडरस्टूड, वो रिपीटिशन हो जाएगी अगर आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं। वो अंडरस्टूड है कि मतलब वो उसी के लिए आप लिख रहे हैं। वो एड्रेसी भी जानता है कि मतलब आपने उस यूनिवर्सिटी के नाम पे ही लिखा है। सो डोंट write the university, rather just say Mr. Ehsan for the position of lecturer. और दूसरी लाइन जो मैंने पढ़ी अभी, उसमें क्या है कि I know Mr. Ehsan is the right person for the position. For the position का आपने जिक्र नहीं किया, आगे क्या कहा? For which he has applied. So this is a kind of journal. आपने उसका नाम लिखना है instead of saying to whom it may concern. आपने पोजीशन का नाम लिखना है instead of saying for the position he has applied. So this is मतलब difference between general and specific. So you don't need to be generic when you are writing this kind of thing. ये इस अंदाज में लिखा जाता है. Now we will move towards the actual letter, how it is composed, what would be the words. By stating an example, I will show you the example how it is written. Now I'm going to share the screen where you will find a model of this letter, reference letter, how it is written. Just look at the page. Now just read the letter with me. This is means the addressee means the first word, Dr. Ralph Cramden. Chaya, Department of Textile Merchandising and Interiors, the University of Flatbush, Brooklyn, New York. This is first number. अब जरा देखें कि मतलब ये जो एड्रेस है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये कौन है? ये जिस बंदे को लिखा जा रहा है, दिस इज एड्रेसी, और उसकी पोजीशन, देन उसका कंप्लीट एड्रेस. दिस इज हाउ यू एड्रेस योर एड्रेसी. मुकम्मल एड्रेस लिखना होता है. सपोज अगर इसकी जगह आप लिखें कोई एहसान नाम का कोई एग्रीकल्चर में टीचर है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डॉक्टर एहसान अकरम चेयर, डिपार्टमेंट ऑफ दिस एंड दैट, देन जहाँ पे यूनिवर्सिटी है मींस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पता नहीं वो कहाँ पे, जेल रोड पे है कहीं पे, जो एड्रेस है मुकम्मल, यू कैन राइट द होल address. Then you will start like this: Dear Dr. Cramden. Dear Dr. Cramden. This is how you state or how you take his name. Now look at how he starts. I am writing in support of Miss Trixie Norton. मतलब इसमें अपना नाम जैसा आप फिट करें. I am writing in support of आदिल, एहसान, whoever the candidate. मतलब ये कैंडिडेट का नाम होगा, ये जिसको लिखा जा रहा है उसका नाम होगा. Who I understand has applied for the position of lecturer of fashion merchandising in your department. In short, I give him, अगर कोई लड़का है, I give him my highest recommendation without reservation. अब देखें, ये beginning of the letter है. How it starts. To give you a context for my recommendation, please let me tell you briefly about myself. I'm currently a professor of software engineering at the Penn State University. I returned to research and teaching after a successful career as an academic administrator. आगे brackets में जो कुछ है रहने दें. As
as dean at Brooklyn Country, County College, I was Miss Norton's direct supervisor. अब इसकी जगह जो है ना आप अपना नाम लिखिए, जैसे I was Mr. Ahmed's direct supervisor. In fact, I hired her after an extensive search and supervised her for more than 2 years. अब जरा देखें, मतलब जो इसमें दूसरा पॉइंट हमने लिखा था ना कि जो बंदा लिख रहा है ये रेफरेंस लेटर वो खुद क्या है और किस कैपेसिटी में जिस बंदे के लिए वो लिख रहा है किस कैपेसिटी में उसको जानता है. So this is the kind of position of the referee who is writing the letter and his relation with the candidate for whom he is writing the reference letter. So इन दोनों का जो रिलेशन है वो इस पैराग्राफ में उसकी पोजीशन प्लस उसका जो उससे रिलेशन है, दिस विल पॉइंट आउट. नाउ टैक्सी की जगह हम लिखेंगे Ahmed created a vibrant and a successful fashion design program from scratch. He designed the labs, wrote the curriculum, taught many of the courses, and supervised adjunct faculty. In all of these things, he was very successful. Ahmed was also deeply involved in marketing and promoting his program and other programs in the division, such as the computer graphics and the multimedia program, where he made many contributions. This paragraph totally focuses on the abilities or the strengths that Ahmed or this person has. So मैंने बताया था कि मतलब जो strengths है वो आपने highlight करने हैं. So he has highlighted the strength. Now, he further says, his work with the students was outstanding. He was always enthusiastic, energetic, patient, and kind. Because of these attributes, he was beloved by the students and it was a joy to supervise. He took direction very well, provided feedback, was diligent and hardworking. I will wind up the lecture over here because this Zoom software is going to shut down and we will resume this lecture in the next class. Thank you.